Hello, guys, welcome back to another mind blowing episode of the Jai Thakkar Show. Today, we will talk about majorly two things: confidence and communication. I know we have been talking about this in small topics in our previous podcasts, in conversations where we have guests as well. But today, majorly, we will discuss deeply into what exactly and how exactly confidence is generated and how can we use it in developing and mastering our communication skills. So let's go into this beautiful podcast. So first, let us talk about confidence, how this confidence comes into us. One major factor of confidence coming into us is validation. Validation, where someone validates us on what we are doing. हम क्या कर रहे हैं, कोई बोलेगा कि यार हाँ यार तू सही कर रहा है या सही कर रही है, उस चीज़ को देख के हमें वैलिडेशन मिलती है कि हाँ, I am doing something. I am doing something which is correct, which is assured by the other people whom I think that assurance is meaningful. Like अगर कोई random इंसान हमें assure करता है that hey you are doing good, it feels good, but someone जो कोई अपना हो, जैसे कि हमारी फैमिली हो गई, हमारे फ्रेंड्स हो गए, या फिर हमारे लव्ड वंस हो गए, उनमें से अगर कोई बोलते हैं कि यार यू आर डूइंग ग्रेट, यू आर डूइंग गुड, कंटिन्यू दिस, वो एक अलग ही लेवल पे कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है. एंड व्हाई इज इट सो? लाइक टुडे आई वाज ऑब्जर्विंग monkeys and I saw some validation का traits in them. Now let me tell you how this validation works in very deeper or let's say very basic sense कि कहाँ से वो धीरे धीरे करके इवॉल्व हुआ, जहाँ पे ह्यूमंस को वैलिडेशन एक डिफरेंट लेवल पे चाहिए, कम्युनिकेटिव लेवल पे चाहिए, जो कि कम्युनिकेशन सिर्फ वर्बल नहीं, फिजिकल कम्युनिकेशन भी हो, जो कि बॉडी लैंग्वेज से हो, टोन से हो, नोटेशन से हो, आईज मूवमेंट, बॉडी पोस्चर, efforts in helping you, efforts in telling you that you are doing great. So all these things we will understand and correlate कि communication और confidence इनका correlation कहाँ से है. So confidence के लिए हमें पहले जाना पड़ेगा validation को समझने के लिए. What exactly is validation? And when I was watching these monkeys, generally we see that dogs bark on monkeys and the whole group of monkeys get runs here and there, and once everything settles down, so I saw one single monkey who was away from his or her group. So the monkey was looking here and there, he was making voices to communicate that hey, where are you, I am alone, I need your help, and this and that. And why do monkeys feel alone? We generally say ना कि humans are social animals, कि भाई हम social animals हैं, हमें लोगों की ज़रूरत पड़ती है, we need another human so that we can feel secure, safe and all that thing. Now when we saw this in monkeys, and why I am saying monkeys and because I've observed it in monkeys is because majorly it is said that the Darwin theory that we are evolved from monkeys. So थोड़े traits उधर से भी आते जाते. So what majorly comes in from there is कि that monkey was searching here and there, that monkey got his or her group back. So what happens, उसके बाद monkey forgets कि इसकी क्या importance है, उसकी क्या importance है, monkey just starts behaving normally with them. But जब वो अलग हुआ था monkey, that monkey required another monkey to feel safe. Now उधर एक फिजिकल प्रेजेंस से एक वैलिडेशन मिलती है दैट यस आई एम अ पार्ट ऑफ वन ग्रुप, जहां पे हम दो अलग अलग मंकीज के ग्रुप को झगड़ते देखते हैं. है तो मंकीज, है तो सेम स्पीसीज, पर क्यों एक मंकी को एक पर्टिकुलर ग्रुप पसंद आता है, दूसरा पर्टिकुलर ग्रुप पसंद नहीं आता है? इज बिकॉज कि उस मंकी ने उस ग्रुप के साथ सेफ फील किया है. अगर उस ग्रुप में किसी दूसरे मंकी का बच्चा सपोज कोई दीवार नहीं चढ़ पा रहा है तो वो खुद जाके हेल्प करेगा, बट अगर किसी दूसरे ग्रुप का मंकी का बच्चा हो देन वी डू नॉट नो, आई डू नॉट नो स्पेशली, राइट?
सो मंकी से धीरे धीरे हमें वैलिडेशन मिलना शुरू हुआ। मंकी से हमें लगने लगा कि ओके, ये मंकीज का वैलिडेशन, मंकीज का कॉन्फिडेंस कि अगर मेरा ग्रुप मेरे साथ हो तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सिमिलरली इन मंकीज, अगर उनका ग्रुप उनके साथ हो देन दे बिकम टू एग्रेसिव टू प्रोटेक्ट, जबकि वो अकेले हो दे माइट चेंज। आई एम नॉट गोइंग मोर इनटू मंकी साइड। नाउ कमिंग बैक टू अस, हमें भी तो सिमिलर चाहिए ना। हमें भी तो यही चाहिए कि यार हमें कोई हमारा ग्रुप वाला इंसान हमारे साथ हो तो हम शेर की तरह दहाड़ने लगते हैं, और जब वहीं पे हमारे ग्रुप का इंसान नहीं होता, हम अकेले होते हैं, हम थोड़े से अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। हम थोड़े से पूछने लगते हैं, भाई ये क्या है, भाई वो क्या है, ये क्या है, दिस दैट। जबकि हमारा ग्रुप साथ हो तो अरे मैं तो सब जानता हूँ, मैं तो सब कर लूंगा। So this is the level of confidence which we get when we see our loved ones around, when we see our people around us. फिर क्योंकि धीरे धीरे इवॉल्व होते गए, हमारी रिक्वायरमेंट्स हमारे एवोल्यूशन के बेसिस पे चेंज होने लगी, तो हमें ये लगने लगा कि अब सिर्फ और सिर्फ उस फिजिकल प्रेजेंस से मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है, स्पेशली आज के टाइम में जहां पे इतना ज्यादा कंपटीशन है, जहां पे मैं 99.9% मेरे ही उस फ्रेंड सर्कल, मेरे ही लव्ड वन से मैं compete कर रहा होता हूँ। मैं मेरे ही फ्रेंड से compete कर रहा होता हूँ कि मुझे इस एंट्रेंस एग्जाम में मेरी सीट मिल जाए, इस एग्जाम में मेरी सीट मिल जाए, इस जॉब में मुझे मेरी सीट मिल जाए। एंड मेजरली वी आर competing अराउंड आवर लव्ड वंस, और फिर भी हमें वैलिडेशन, कॉन्फिडेंस उन्हीं से चाहिए, जबकि हम उन्हीं से compete कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली उस वैलिडेशन का लेवल बढ़ेगा ना। अब मुझे सिर्फ तुम्हारी प्रेजेंस से उतना कॉन्फिडेंस फील नहीं होगा, अब मुझे तुम्हारे वर्ड्स से उतना कॉन्फिडेंस फील होगा, तुम्हारे एफर्ट से कॉन्फिडेंस फील होगा कि अगर मैं कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा हूं जिसमें मैं तुम्हारा कॉम्पिटिटर हूं, तो तुम मुझे नोट्स दो। अगर तुमने मुझे नोट्स दिए तो वो अलग एक एड ऑन लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है, एक एड ऑन लेवल ऑफ वैलिडेशन मिल जाती है कि हाँ, दिस पर्सन वांट्स मी टू क्रैक दिस एग्जाम, तभी तो नोट्स दिए। फ्रेंडशिप बॉन्ड दैट इज ऑन अ डिफरेंट लेवल, बट उसने तुम्हें नोट्स क्यों दिए? क्योंकि दैट पर्सन इज विशिंग दैट यू क्रैक दिस एग्जाम, दैट पर्सन इज वैलिडेटिंग दैट योर फीलिंग, योर इमोशन फॉर क्रैकिंग द एग्जाम इज ट्रू। वरना सोचो, एक अकेली दुनिया में तुम तुम्हारे डिसीजंस पे कितना ही भरोसा कर पाते हो। अगर तुम्हें कोई वैलिडेट करने वाला नहीं है, या कोई करने वाली सोसाइटी भी नहीं है तुम्हें वैलिडेट करने के लिए, अगर तुम अकेले हो तो तुम्हारे लिए स्मोकिंग करना, तुम्हारे लिए ड्रग्स करना, वो सारा लीगल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वैलिडेशन तो तुम्हें दिखाता है कि सही और गलत क्या है। वो तुम्हें एटलीस्ट एक फ्रेमवर्क दे देता है कि ये सही, ये गलत। अब तुम खुद डिसाइड करो कि तुम्हें कितना सही चाहिए, कितना गलत चाहिए। पर अगर ये सोसाइटी नहीं होगी, ये वैलिडेशन नहीं होगा, तो तुम कहां से लेकर जाओगे कि क्या सही है, क्या गलत है? तुम्हें फर्क पता कैसे चलेगा? तुम एक्सपीरियंस से फर्क लोगे, फिर सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस बचेगा फर्क ढूंढने के लिए, और उस एक्सपीरियंस में इतनी सारी स्ट्रगल, उस स्ट्रगल को सॉल्व करने में इतना सारा टाइम लग जाएगा कि तुम जब तक तुम्हारी एज हो जाएगी, तुम उस टाइम पे जितने वाइस होंगे, तुम्हारे आसपास के लोग जिनको वैलिडेशन मिल रहा था, जिनके पास सोसाइटी थी, वो तुमसे ज्यादा वाइस हो जाएंगे। देयर आर चांसेस, आई एम नॉट कोटिंग इट, बट देयर आर चांसेस। तभी तो हम बोलते हैं कि अगर खुद एक्सपीरियंस ना कर पाओ तो तुम दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखो, क्योंकि दूसरों के एक्सपीरियंस से तुम्हें एक फ्रेमवर्क मिल जाता है, क्या सही है, क्या गलत है। उस फ्रेमवर्क को तुम अपनी लाइफ में अप्लाई करके देखो, या अपनी लाइफ में फ्रेमवर्क को इमेजिन करो कि मैं ये फ्रेमवर्क लगा रहा हूं मेरी लाइफ में, तो मेरी लाइफ में जो सही है मैं उस पर काम कर रहा हूं तो क्या आउटपुट मुझे दिख रहा है, जो गलत है उस पर काम कर रहा हूं तो क्या आउटपुट दिख रहा है। फिर मैं देखता हूं नहीं, जो पुराने फ्रेमवर्क में जो गलत था उसको मैं यहाँ पे सही के कंटेक्स्ट में डाल दूंगा, तो मेरा काम और बेहतर हो जाएगा। सपोज पहले में था कि मैं सिर्फ और सिर्फ फॉर एग्जांपल कंटेंट क्रिएशन में, कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पे काम करूंगा, इंस्टाग्राम, जो पुराने फ्रेमवर्क में था, इंस्टाग्राम या यूट्यूब। बट अब अभी के फ्रेमवर्क में कि हाँ चलो मैं दो तीन प्लेटफॉर्म पे साथ में काम कर सकता हूँ।
So this is little manipulation you can add on and subtract so you can optimize it in the better way. अब तुम्हारा काम कितना कम हो गया, तुम्हें अब सिर्फ और सिर्फ ये फ्रेमवर्क में से ये सही ये गलत ये सही ये गलत खुद के एक्सपीरियंस खुद के अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे करना है. तुम्हें फ्रेमवर्क ने काफी सारा डेटा इंफॉर्मेशन दे दिया ऑलरेडी. और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अब तुम इजीली अपना काम प्लान कर सकते. इसलिए तुम्हें सही और गलत का डिफरेंस दुनिया एनफोर्स करती है. बट द प्रॉब्लम विद करंट सोसाइटी इज दैट दे एनफोर्स एंड दे वांट यू, दे फोर्स यू to follow exactly. They don't want you to manipulate it according to your own interest. And this is where the problem lies with society. And this is where people want to go away from you and restart their whole life, where they lack on to the experience which they could have gotten by just manipulating your framework. इसलिए सेल्फ एक्सप्लोरेशन, सेल्फ एजुकेशन हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वेयर यू गेट द पावर टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ. और जब तुम खुद को समझोगे तब तुम्हें वो पावर मिल जाएगी कि तुम सोसाइटी के दिए हुए फ्रेमवर्क को मैनिपुलेट कर पाओ कि क्या सही है क्या गलत है मैं डिसाइड करूंगा. बस सोसाइटी ने मुझे डेटा दे दिया है कि क्या है दुनिया में, वरना दुनिया में क्या है ये मैं खुद जाके एक्सपीरियंस करूं तो कितना ज्यादा टाइम लग जाएगा. फ्रेमवर्क हमें एग्जैक्टली देता क्या है? फ्रेमवर्क मुझे ये बताता है कि दुनिया में अच्छे काम भी होते हैं बुरे काम भी होते हैं, अच्छे काम क्या है बुरे काम क्या है. अब मैं डिसाइड करूंगा कि मेरे लिए अच्छा क्या है मेरे लिए बुरा क्या है. पर सोसाइटी ने मुझे ये तो बता दिया टोटल कितने काम होते हैं. अगर मैं यही देखने गया टोटल कितने काम होते हैं, मैं अच्छे भी कर लूंगा बुरे भी कर लूंगा, और फिर एट द एंड मेरे को पता चलेगा कि मेरे लिए अच्छा क्या है. और वो जब मैं सारे काम करूंगा समझूंगा वो ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा rather than I just get the data from society कि ये काम है टोटल. अच्छा बुरा मैं मेरी तरफ से कैप लगा दूंगा, आप बस मुझे बता दो टोटल काम क्या है. This is where when you get a good data you start working on it, you get the validation and you give your input. One of the major thing in validation and confidence is if you put your effort and then you get validated on it, you will gain confidence. But if you just get validation, तो बैठे हो कुछ नहीं कर रहे हो और तुम्हारे घर वाले पूरी दुनिया बोल रही है कि बेटा तुम्हारे में पोटेंशियल है, तुम कर सकते हो, पर तुम कुछ नहीं कर रहे हो उसमें, तो वो सिर्फ और सिर्फ वैलिडेशन है. दैट इज यूजलेस इफ यू डू नॉट पुट एनी एफर्ट इन इट. अगर तुमने एफर्ट डाल दिया उसमें, तुमने वो करके देखा, चाहे दुनिया बोल रही है कि तुम्हें पोटेंशियल है, पर तुमने वो एफर्ट करके देखा, तुम्हें लगा कि नहीं मुझे इसमें नहीं अच्छा जम रहा है, तब तुम दूसरी चीज ट्राई करोगे. पर अगर तुम्हें पता ही नहीं है, तुम एफर्ट करके देख ही नहीं रहे कि सोसाइटी क्या कहना चाहती है, मैं क्या करना चाहता हूं या करना चाहती हूं, तब तुम्हें कुछ भी आइडिया नहीं लगेगा. तब तुम सोसाइटी के वैलिडेशन को एक प्रेशर की तरह लेने लगोगे. फिर तुम एक्सप्लोर नहीं करोगे जो सोसाइटी बोलना चाह रही है तुमसे, तुम उसको मजबूरी में करोगे. और जब तुम एक्सप्लोर नहीं करोगे तो सोसाइटी की वैलिडेशन तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक बोझ बन जाएगी. अगर तुमने उस चीज को बोझ नहीं बनने देना, तुमने उस वैलिडेशन को कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट करना है, तो तुम उसको एक्सप्लोर करो. एंड दिस इज वेयर परसेप्शन कम्स इन. यू सी इट एज एन एक्सप्लोरेशन, देन यू टेंड टू पुट योर एफर्ट, देन यू टेंड टू जनरेट इंटरेस्ट. तुम क्वेश्चंस पूछ के जवाब ढूंढना चाहते हो, जबकि दूसरी तरफ जब तुम प्रेशर लेते हो सोसाइटी के वैलिडेशन का, तब तुम क्वेश्चन ये नहीं पूछते कि इसका मतलब क्या है, तुम ये पूछते हो इसको कैसे निपटाना है जल्दी. जब तुम्हें कॉलेज स्कूल से प्रेशर मिलता है होमवर्क का, तो वो क्या होता है, तुम इंटरेस्ट नहीं जनरेट कर रहे हो उस चीज में, तुम उसको निपटा रहे हो. और अगर तुमने जनरेट करके देख लिया कि मेरा मन नहीं लग रहा है और फिर भी ये कंपल्शन है, तब उस प्रेशर को तुम टाइम मैनेजमेंट से डील कर पाओगे. पर अगर तुमने ट्राई भी नहीं किया कि चल मैं इस होमवर्क में, इस असाइनमेंट में, इस चीज में इंटरेस्ट लेकर देखूं एक बारी कि क्या मैं उस इंटरेस्ट को कंटिन्यू कर सकता हूं या नहीं कर सकता, क्या वो इंटरेस्ट जनरेशन मेरे को बोझ लग रहा है कि नहीं लग रहा है,
And interest generation both in the sense, if I'm putting effort inside it, do I feel happy by just putting effort? After putting effort, do I feel happy with the validation society is giving me? क्या मैंने आज होमवर्क और असाइनमेंट कंप्लीट किया, मेरे प्रोफेसर ने मेरे को अच्छी 2 चीजें बोली, क्या उस अच्छी 2 चीजों का मेरे पे कोई अच्छा फर्क पड़ा लॉन्ग टर्म, या बस मैंने सुन के निकाल लिया क्योंकि मेरा मन नहीं था वो अच्छी चीज सुनने का? अगर तुमने एफर्ट पुट नहीं किया है तो अब तुम कैसे कह सकते हो कि क्या ये प्रेशर है या मेरा इंटरेस्ट का नहीं है? इंटरेस्ट का नहीं है और कंपल्शन है, तब मिलके वो प्रेशर होता है। और फिर उस प्रेशर को टैकल करने के बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स है विच वी कैन डिस्कस ऑन अनदर पॉडकास्ट। Now here you get the whole idea of how validation comes in and pumps in your confidence if you have interest and if you put effort. If you have interest, you put effort, and if you get validated, or if you find someone who can validate you, and validation should be very, very honest validation, and that's why it is majorly said that you need to find a mentor in whichever field you are. क्योंकि अगर वो mentor आपको वैलिडेट भी करेंगे और आपको बताएंगे भी सही कि आपकी गलती क्या है, और जो गलती बता रहे हैं ना, आप उस गलती में भी वैलिडेशन ढूंढ लोगे क्योंकि आपको इनहेरिटली पता चल जाएगा कि दिस पर्सन एक्चुअली वांट्स मी टू सक्सीड, दिस पर्सन वांट्स मी टू डू दिस चेंजेस बिकॉज आई कैन सक्सीड। एंड व्हेन यू विल नो योर मिस्टेक, यू विल फील हैप्पी दैट आई नो माय मिस्टेक, यू विल फील हैप्पी दैट फाइनली समवन हैज टोल्ड मी व्हाट मिस्टेक्स एंड फाइनली आई हैव गॉट अ डोर open door to explore new possibilities in the world I am interested. And that's how the system of validation and confidence works. और कॉन्फिडेंट बने रहने के लिए आपको एक मेजर चीज चाहिए, दैट इज प्रैक्टिस। जब हमने बोला कि हम एफर्ट पुट कर रहे हैं, हमारे मेंटर ने हमारी गलतियां बता दी, हम उस गलतियों को सुधारने के लिए प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना ज्यादा हम खुद इंप्रूव करते रहेंगे, बिकॉज फर्स्ट डोज ऑफ वैलिडेशन इज नो वन बट आवरसेल्व्स। अगर हमने देखा कि हाँ मैंने प्रोग्रेस करी है, देन आई कैन से दैट ओके आई एम गेटिंग लिटिल मोर कॉन्फिडेंस। और उस कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए हम दुनिया से वैलिडेशन मांगते हैं कि क्या मेरे मेंटोर ने बोला मैंने सही किया, क्या मेरे लव्ड वंस ने बोला मैंने सही किया। बट हम उस सही चीज को परसीव सही तरीके से तभी कर पाएंगे जब हमें खुद को बिलीव होगा कि हमने इंप्रूव किया है। फॉर एग्जाम्पल, हम अभी पोजीशन 1 पे है, हमें जाना है पोजीशन 100 पे, और पोजीशन 100 पे जाके हमारे मेंटोर ने बोला है कि तुम पोजीशन 1 से पोजीशन 100 पे जाओगे तब तुम्हें XYZ चीजें कंप्लीट होंगी, आपका गोल कंप्लीट होगा, आपको इतनी नॉलेज मिलेगी, आपको ये पूरा का पूरा पैकेज रिसीव होगा अगर आप अभी 1 पे हो और अगर आपने 100 रीच कर लिया है तो। और आपके मेंटर बीच बीच में बोलेंगे कि आप अभी कौन सी पोजीशन पे हो, आप 2 पे हो, 4 पे हो, 5, 15, 50, 60, 70, 80, 90। अब यहां पे जब खुद को ट्रेस करने की बारी आती है, जब खुद के प्रोग्रेस को ट्रैक करने की बारी आती है, तब वन मेजर फैक्टर विच प्लेज इन इज दैट ऑफ राइटिंग डाउन। जब हम बोलते हैं ना कि आपको प्रोसेस के एंड में पता चलेगा, आप प्रोसेस करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, काम करते जाओ, आपको एंड में पता चल जाएगा कि आपने कितना ज्यादा एक्सपीरियंस किया है। और जब आप एक एक्सपीरियंस इंसान को देखते हो जो उसी रास्ते पे चल रखे हैं, वो इंसान जब कहते हैं कि हाँ हम मेरे को XYZ काइंड ऑफ गोल्स, XYZ काइंड ऑफ नॉलेज है, उन्होंने बोला कि मुझे ये नॉलेज पूरी प्रोसेस में पता चला है। और अगर आप उस प्रोसेस में घुस चुके हो, आपको पता रह रहा है कि इनको ये नॉलेज प्रोसेस में मिली, मुझे क्यों नहीं मिल रही है। इट इज बिकॉज कि जब आप 100 पहुंच जाओगे ना, 100 पहुंच के जब आप पीछे देखोगे 1 to 99 की जर्नी को, तब उस जर्नी को देख के आपने अपने खुद के एक्सपीरियंसेस को ऑब्जर्व करके आप उस नॉलेज को परसीव कर पाओगे। ऐसा है कि 100 पे पहुंचने के बाद आपको उस नॉलेज की चाबी मिल जाएगी, उस ताले की चाबी मिल जाएगी, उस बॉक्स की चाबी मिल जाएगी जो आपने 1 to 99 के प्रोसेस में इकट्ठा करे।
इसलिए 100 तक पहुंचना जरूरी है। आप ये मत सोचो कि मैं 80 हूं, 90 पे हूं, अभी भी मेरे को एक चीज की चाबी नहीं मिली, एक ताले की चाबी नहीं मिली, पर वो सारी की सारी चाबी 100 पे रखी हुई है। What you have to do is to just walk 10 more steps to reach to 100. और कॉन्फिडेंस आपको तब आएगा हर एक स्टेप भरने के लिए जब आप अपने आप को देखोगे कि मैं 1 से 2 पे पहुंचा या नहीं, मैं 2 से 4 पे पहुंचा या नहीं, मैं 4 से 8 पे पहुंचा या नहीं, 8 से 80 पे पहुंचा या नहीं। डेली ऑब्जर्व करने के लिए आपको डेली अपने क्या किया वो डेटा रखना पड़ता है। और वो डेटा आप रखोगे कैसे? जर्नलिंग से। आप जर्नल करो, या तो लिखो, या तो कहीं पे वॉइस नोट डाल दो, या टाइप कर दो जो भी आपने किया है पूरे दिन का, सो दैट व्हेन यू गेट दैट लेवल ऑफ एक्सपीरियंस, व्हेन यू गेट दो स्किल्स, तब आपके पास सारे के सारे ताले हो जिन पे आप को की मिल गई। आप उस की को लगा के उस ताले से, उस बॉक्स से निकला हुआ खजाना, नॉलेज का, एक्सपीरियंस का, अंडरस्टैंडिंग का, वो खजाना आप ले पाओ। और अगर आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम उस बॉक्स चाहिए जिनकी चाबी आपको मिलेगी 100 पे पहुंचने के लिए, तो जर्नलिंग इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जर्नलिंग आपको सिर्फ और सिर्फ ताले कलेक्ट करने में या उस बॉक्स कलेक्ट करने में हेल्प नहीं करता, वो आपको हेल्प करता है आपको ट्रेस करने में कि मैं 1 से 2 पर पहुंचा या नहीं। क्योंकि 1 से 100 तक के सफर में बहुत बार आप भूल जाओगे कि आप हो कहां। और जब वो भूल जाओगे, जब वो लो फेज आएगा बीच में, जब आपका मन करेगा यार मैं थक गया, मैंने इतना ज्यादा काम किया है, मैं थक गया, मैं और नहीं कर सकता, तब ये जो आपने लिखा है ना, वो आपको हेल्प करेगा, आपको बताएगा कि मैंने 1 से 50 तक का सफर कर रखा है, अब मेरे को और 50 से 100 तक का ही सफर बाकी है। मैंने 1 to 50 में इतना कर दिया है, मैंने इतना सारा काम कर दिया है, मैंने 1 to 50 में आधे रास्ते तक पहुंच चुका हूं। मेरा अल्टीमेट गोल क्या है? क्योंकि जब आप लिखोगे तब आप लिख उस परसेप्शन से रहोगे कि आपको गोल मिलेगा, आपको वो ताले की चाबी मिलेगी, आपको उन चाबी के साथ आपका अल्टीमेट रिजल्ट मिलेगा, आपको आपका अल्टीमेट आउटकम मिलेगा जो आपको एक्चुअली मोटिवेट कर रहा है। और उस मोटिवेशन को ट्रैक डाउन करने से, और उस ट्रैक डाउन करने को जब आप देखोगे, ये तीनों चीजें जब इन लाइन आपकी होंगी, तब आपको मिलेगा कॉन्फिडेंस, तब आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, वो सारी चीजें मिलेंगी। क्योंकि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। ये चीजें, ये ट्रेसिंग, ये लिखना, ये डेली जर्नलिंग, वो क्या करेगा? इट विल ग्राउंड यू डाउन, इट विल टेल यू दैट वेयर आर यू एग्जैक्टली। आप अपने आप को 80 पे समझ रहे हो तो बताएगा आप 50 पे हो, अगर आप अपने आप को 20 पे समझ रहे हो तो वो बताएगा आप 50 पे हो। In whichever situation you are, in whichever way perception you have built yourself around, this writing down will help you to know that where exactly you are. और इसके लिए आपको अपने आप से सच बोलना पड़ेगा। You have to tell truth to yourself, and to understand when you are not lying, there are multiple ways to understand where you are not lying to yourself. First is आपको एक instant feeling आ जाएगी कि हाँ ये किया, मैंने वो किया, ये किया, ये सच है। I instantly feel yes. एक तो वो हो गया कि आप बता रहे हो कि हाँ ये झूठ नहीं है। Second way of telling that, second way of understanding that you are not telling yourself a lie, जब आपको ऐसा लगे ना कि आप खुद को सहला रहे हो, खुद को झूठ बोल के कि नहीं यार जय तुमने अच्छा किया, बट इन रियलिटी यू हैव डन अ टेरिबल थिंग एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड ग्रो आउट ऑफ इट। और उस टाइम भी आप अपने आप को उस चीज को बुलाने के लिए जब आप बोल रहे हो कि नहीं जय तुमने अच्छा किया, दिस दैट, वो गलत है। और वो गलत आपको तब पता चलेगा जब आप लिखोगे और आपको आप ये ऑब्जर्व करोगे जब आप ये ऑब्जर्व करोगे कि मैं ये चीज जो बोल रहा हूं अपने आप को कि जय तूने सही किया, इट इज ओके, डू नॉट थिंक अबाउट दैट और फॉरगेट इट। जब आप ये चीजें अपने आप को बोलोगे
तब आपके दिमाग में कोई फिल्टर नहीं होना चाहिए। द फिल्टर ऑफ फियर, द फिल्टर ऑफ फीलिंग रिजेक्टेड एंड द फिल्टर ऑफ लूजिंग, ये तीन मेजर जो फियर्स के फिल्टर्स होते हैं ना, ये फियर वाले फिल्टर जो होते हैं वो आपको अपने आप से झूठ बोलने में मजबूर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेजरली मैं ये एक रिलेशनशिप के एग्जाम्पल से बता रहा हूं, दैट यू लव समवन बट योर सिचुएशन और योर सिचुएशन इज नॉट गुड इनफ दैट यू कैन एक्सप्रेस समवन दैट यू लव। तो आप अपने आप को झूठ बोलते हो, नहीं यार ये जो है बस सिर्फ दोस्ती है, ये जो है बस सिर्फ दोस्ती है, ये जो है सिर्फ और सिर्फ दोस्ती है, मेरी सिचुएशन ऐसी है मैं नहीं कर सकता, ये सिर्फ दोस्ती है। ये आप अपने आप को झूठ बोल रहे हो क्योंकि आप सिचुएशन से डर रहे हो, सिचुएशन से डर रहे हो। वो सिचुएशन कोई भी हो, सिचुएशन से आपका डर कुछ भी हो सकता है। चाहे वो डर हो सकता है कि मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा, चाहे वो डर हो सकता है कि मेरे पे लांछन उठेगा, चाहे वो डर हो सकता है कि मैं मेरे रिसोर्सेस खो दूं। वो अलग अलग लेवल पे अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग डर हो सकते हैं। बट मेन थिंग इज दैट यू आर fearing something, let it be situation or your own perception, it can be multiple fears. But unless and until you understand that this is fear, if you understand कि ये जो भी मैं बोल रहा हूं खुद से वो एक डर की वजह से बोल रहा हूं, तब आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मैं खुद को झूठ बोल रहा हूं या नहीं। और जब आप अपने आप को सच बोलोगे, उस सच को पेन डाउन करोगे, नोट करोगे, तब आपको एग्जैक्टली पता लगेगा कि आप अपनी लाइफ में किस पोजीशन पे हो। और जब आपको वो पता चल गया, आपको कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है। आप मोटिवेट क्यों होते हो? आप अपनी सिचुएशन से डरते हो। मेरी सिचुएशन से डरता हूं, मैं किसी और से बोरो लूंगा मोटिवेशन, और वो मोटिवेशन नहीं होता, वो एक सपना होता है जो मैं दूसरे इंसान से बोरो करता हूं खुद जीने के लिए। और जब वो नहीं जी पाता, अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता हूं, वापस से एक और सपना बोरो करता हूं। दिस इज हाउ द मोटिवेशन साइकिल वर्क्स व्हेन यू बोरो other person's dream because you do not tell yourself the truth. और जिस दिन आपने अपने आप को सच बोलना शुरू कर दिया, उस दिन से आप अपने आप में कॉन्फिडेंस जनरेट करना शुरू कर दोगे। Then you won't need any external stimuli to motivate you to do your work. फिर आप खुद के अंदर से ही सारी सोर्स ऑफ मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस ढूंढोगे। और जब ये कॉन्फिडेंस आएगा आप में, इस कॉन्फिडेंस के साथ आप फिर कम्युनिकेट कर पाओगे। और वो कम्युनिकेशन बहुत अलग अलग लेवल पे होगा। वो कम्युनिकेशन होगा आपके आई कांटेक्ट के बेसिस पे, वो कम्युनिकेशन होगा आपके बॉडी पोस्चर के बेसिस पे, वो कम्युनिकेशन होगा आपके बॉडी जेस्चर्स के बेसिस पे, वो कॉन्फिडेंस होगा आपके बोलने के बेसिस पे, आपके वर्ड्स के बेसिस पे। देन यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग हाउ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आर। जब हम जनरली बोलते हैं ना कि यार कुछ वर्ड्स हर्ट कर जाते हैं, कुछ वर्ड्स आपकी इंटेंशन सामने वाले को समझा नहीं पाते। द मेजर प्रॉब्लम विच जनरली द यूथ फेसेस इज द प्रॉब्लम ऑफ व्हाई अदर पर्सन इज अनेबल टू अंडरस्टैंड मी एंड व्हाई आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन। ये अंडरस्टैंडिंग का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहता है आजकल के यूथ में, एंड दैट इज मेजरली बिकॉज वी आर अनेबल टू कन्वर्स कॉन्फिडेंटली। हमारे दिमाग में हर बार ये डाउट होता रहता है कि क्या मैं सही से समझ पाऊंगा या समझ पाऊंगी, क्या वो मेरे को सही से समझ पाएगा या समझ पाएंगी। क्यों? क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस हमारे ऐसे होते हैं कि कोई हमें समझ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि हम खुद पे वर्क कर ही नहीं रहे हमारे कम्युनिकेशन स्किल पे। क्या मैं कॉन्फिडेंट हूं? क्या मेरी पर्सनालिटी सही है? क्या मेरी पर्सनालिटी कॉन्फिडेंट है? क्या मेरी पर्सनालिटी जता रही है क्या मैं बोलना चाह रहा हूं? इट कैन बी मेजरली बिकॉज क्योंकि मैं कई बार मेरी बॉडी लैंग्वेज एकदम ड्राउन्ड होती है, बट मैं बोलना एकदम कॉन्फिडेंट चाहता हूं। और इसलिए हमारी मोस्टली जनरेशन, हमारी पेरेंट जनरेशन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेट्स में मेजरली इन्फ्लुएंस करती है हमें कि बेटा कॉन्फिडेंटली बोलो, मुस्कुरा के बोलो, ऐसे बोलो, वैसे बोलो, ये वर्ड्स यूज करो, ये वर्ड्स यूज मत करो, बिकॉज दीज आर द पर्सनैलिटी ट्रेट्स विच आर बीन कैरिड फॉरवर्ड बाय द कल्चर। अब वो कल्चर में भी चेंज हुआ हो, इसलिए हमें वो पर्सनैलिटी ट्रेट्स चेंज करने पड़ रहे हो, बट पर्सनैलिटी ट्रेट्स की इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। और इसलिए एक कॉन्फिडेंस जब आ जाता है आप में, तब आप अपने आप के इतने कंट्रोल में आ जाते हो कि आप अपनी पर्सनैलिटी ट्रेट्स सिचुएशन के हिसाब से चेंज कर सकते हो।
You can be a different, more confident person in front of stage, and you can be a easy going person in front of your friends. और ये तभी होगा जब आपको अपनी एक्चुअल पर्सनालिटी पे कंट्रोल होगा. और वो कंट्रोल कब आएगा? जब आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे. जब आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे दोनों सिचुएशन में, कि मैं मेरे फ्रेंड्स को भी समझा सकता हूँ एक तरीके से, और मैं पब्लिक को भी एक तरीके से समझा सकता हूँ. व्हेन आई एम ऑन स्टेज, व्हेन आई एम गिविंग अ लेक्चर, आई एम प्रेजेंटिंग समथिंग. And when you get this power with help of confidence, with help of repetition, understanding, tracing, validation, that all will climb up, or I would say that all will compound up to develop your confidence. And then this confidence will slowly start giving you power to understand yourself. And when you understand yourself, you can manipulate yourself with same repetitive process of practice, ट्रेसिंग, वैलिडेशन, कॉन्फिडेंस. फिर आप अपनी एक सेट पर्सनैलिटी अपने आप को समझ पाते हो कि मैं पब्लिक के सामने इस प्रकार की पब्लिक के सामने ऐसा बोल पाऊंगा, इस प्रकार की पब्लिक के सामने ऐसा बोल पाऊंगा. एंड दैट्स हाउ यू क्रिएट your confident image. That's how you create your confident personality. That's how you create your confident aura. क्योंकि जब लोग आपको देखेंगे तब लगेगा कि ये इंसान जा रहा है या जा रही है. जब लोग आपको देखेंगे तब उस लोग को पता चलेगा कि दिस पर्सन हैज सम स्टफ. जब आप सक्सेसफुल इंसान को देखते हो, जिसको आप एडमायर करते हो, जिस लेवल ऑफ सक्सेस पे वो हैं, वो क्यों है, आप क्यों उनको एडमायर करते हो? उन्होंने गलतियां भी तो की होंगी अपनी लाइफ में, फिर भी आप उनके अच्छे ट्रेड्स को ही क्यों ग्लोरीफाई करते हो? बिकॉज यू सी देम एज अ ड्रीम of you following it. You see them as you also want other people to see you the way you see your idols. और इसीलिए आप अपने आइडल को इतना एडमायर करते हो, क्योंकि आपको उस तरह की पर्सनालिटी चाहिए. जब आपका आइडल आपके सामने से जाए, आपको लगता है दिस इज द पर्सन आई वांट टू बिकम, एंड यू वांट द सेम थिंग. जब आप किसी के सामने से जाओ तो वो दूसरा इंसान बोले कि आई वांट टू बिकम लाइक दिस पर्सन. एंड दैट्स वेयर कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग द बॉडी लैंग्वेज, इंक्लूडिंग द बॉडी जेस्चर, इंक्लूडिंग द वे यू टॉक, इंक्लूडिंग द वे यू सी, इंक्लूडिंग द वे यू बिहेव. Your whole behavior process tells communicate to people. जैसे हमने वो स्टार्टिंग में मंकी वाला एग्जांपल लिया था कि हमारे ग्रुप के प्रेजेंस होने में ही उस मंकी को कॉन्फिडेंस आ जाता है, उस मंकी की पर्सनालिटी, उस मंकी का बिहेवियर चेंज हो जाता है. वैसे ही हमारी प्रेजेंस से दूसरे इंसान को कॉन्फिडेंस आना चाहिए, और उसके लिए पहले हमें खुद कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा. अगर सामने वाला इंसान कॉन्फिडेंट होगा तो वो हमें वैलिडेट कर पाएगा, और उस वैलिडेशन से हमारी खुद की ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगी. पर वो सामने वाला इंसान हमें वैलिडेट तब करेगा जब हमने खुद को पहचाना हो, जब हमने खुद को ट्रेस किया हो, वो प्रोसेस रिपीट की हो, और हमने उस तरीके से खुद में चेंज लाया हो, वो पर्सनैलिटी में, वो कम्युनिकेटिव ऑरा में. And that's how this whole beautiful concept of confidence communication, which includes personality development and validation, connects overall. I hope you enjoyed this podcast. I would really love to know your responses. You can, if you're listening this podcast on different platforms, you can give your review, or if you want to say, if you want to give a deeper review, then you can DM me on my Instagram. My Instagram ID is there in the description. If you are watching it on YouTube, then please do subscribe my channel, please do like, please do comment, please do share if you love the video. And you can also write your beautiful reviews in comment section. I'll make sure I understand them. I make sure that I review it and put it and improve myself in the next episode of the Jai Thakkar Show. Till then, have a great life ahead, have a confident life ahead, and may you be so confident that you communicate comfort, understanding, and love. Take care. Bye-bye.